So good morning, all of you. Once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics. So yesterday we have discussed the numericals, various numericals based on the Bernoulli's equation. So today I will discuss the how to apply the Bernoulli equation in a pipe flow when there is a kinetic energy, some correction factor like kinetic energy correction factor is given, and I will discuss what is the kinetic energy correction factor and momentum correction factor. So why do we apply the kinetic energy correction factor in the velocity head? So if I write let us take this is the section. This is our section. Let us take this is section 1-1. This is 1-1, and this is section 2-2. So if you apply the Bernoulli equation at 1-1 and 2-2, applying Bernoulli equation at 1-1 and 2-2. So what we can write? P1 by gamma plus Z1 plus alpha into V1 square by 2G that is equal to P2 by gamma plus Z2 plus alpha into V2 square by 2G plus head loss between 1-1 and 2-2. So head loss, some head loss. So why do we apply this kinetic energy correction? Here alpha is called kinetic energy correction factor. Rest of the term we have already discussed, that is P1 by gamma is the pressure head, datum head and velocity head. So why do we apply this kinetic energy correction factor? So kinetic energy correction factor is applied because of the velocity. If I see the velocity distribution in real fluid and ideal fluid, so the velocity distribution so velocity distribution can be seen for in the real fluid. So it will be look like that. So this is the velocity distribution in the real fluid. Similarly, the velocity distribution in the ideal fluid can be seen as like that. So this is the velocity distribution in the ideal fluid. So this is the velocity distribution in ideal fluid and velocity distribution in real fluid. So what we have seen that the velocity is not constant and the distribution is like a parabolic. So we cannot say that the velocity head is constant throughout in the real fluid. We cannot say the velocity is constant, and here I have taken the velocity is constant throughout the section. So here the velocity is not constant. So actually the velocity is not constant. So there is a factor that will be applied to the velocity head, or we can say the velocity head. So that factor is called kinetic energy correction factor. So यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी में. तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म कौन सा था, कहां से आया था, ये दिस v स्क्वायर बाई 2g. तो वहां से हमने क्या कर दिया, अल्फा को मल्टीप्लाई करके हमने ये वाला जो मैंने बोला कि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट नॉट कांस्टेंट है, दैट इज नॉट कांस्टेंट. सो एक फैक्टर जो है, जो एवरेज वेलोसिटी से जो हमने निकाला है काइनेटिक एनर्जी, उसको हमने इक्वल कर दिया जो हमारा एक्चुअल जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा उससे हमने इक्वेट कर दिया है. तो यहाँ पे एक टर्म है जिसको हमने फिर बता ही दे रहा हूँ कि क्या है. एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ द लैमिनार फ्लो. लैमिनार फ्लो में हम लोगों को पढ़ना था कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर होता क्या है, लेकिन यहाँ पे बात आई है तो यहीं पे हम खत्म कर लेंगे, वहां पे उस टॉपिक को हम लोग स्किप करेंगे. तो यहाँ पे एक टर्म है जिसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर. काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर. सो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फा क्या होता है. सो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, मान लो कि हमने क्या है एक सेक्शन ले लिया है, लेट अस अज्यूम दिस इज आवर सेक्शन, और इस पे हमने एक एलिमेंट्री एरिया डीए लिया है, और इसके अलावा हमने देखा है कि वेलोसिटी जो है, हमने अभी बताया कि वेलोसिटी जो होता है वो रियल फ्लूइड में क्या होगा, दैट इज लाइक दैट, पैराबोलिक. इस तरह का हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है.
सो दिस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, और दिस इज द DA। सो एक्चुअली अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहें अगर एवरेज वेलोसिटी के टर्म में, सो काइनेटिक एनर्जी इफ आई राइट, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो इन एक्चुअल वेलोसिटी, तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू m इंटू वी स्क्वायर, और वी कैन राइट 1/2 मास कैन बी रिटन एज, मास को क्या लिख सकते हैं, रो इंटू स्मॉल da इंटू वी स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया 1/2 इंटू रो इंटू da इंटू वी क्यू। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाए, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा क्रॉसिंग एट ए सेक्शन that is equal to the इंटीग्रल ऑफ दिस, बिकॉज यहां से तो हमारा डेंसिटी और v की वैल्यू तो dA से वेरी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रो इंटू da इंटू वी क्यू, 1/2 रो इंटू da इंटू वी क्यू। सो यहां से हमने क्या निकाल दिया 1/2 रो तो कांस्टेंट है, तो यहां से हमारा क्या आ गया वी क्यू इंटू da। और ये जो एक्चुअल वेलोसिटी के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला है, ये जो हमारा होना चाहिए, जो हमने एवरेज वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा है वो क्या है, पैराबोलिक है, तो उसमें हमें करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आप निकालो वहां पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्रॉसिंग एट द सेम सेक्शन, जो सेक्शन हमने लिया है, एट द सेम सेक्शन ड्यू टू एवरेज वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा एरिया हमारा ए है, तो 1/2 इंटू रो इंटू ए इंटू वी एवरेज का क्यूब। सेम चीज है, हमने यहाँ पे स्मॉल v लिया है और यहाँ पे हमारा एवरेज वेलोसिटी जो है वो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्रॉसिंग एट ए सेक्शन ड्यू टू एक्चुअल वेलोसिटी हमारा ये है। अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो हमारा पैराबोलिक है, हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हमने लिया है यूनिफॉर्म, तो क्या इस फैक्टर में हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक फैक्टर से जिसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस काइनेटिक एनर्जी पर फ्लो, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड भी लिखा जाता है, पर सेकेंड यहाँ पे अगर बोला जाए काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्रॉसिंग एट ए सेक्शन ड्यू टू द एवरेज वेलोसिटी, इसको अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्रॉसिंग एट ए सेक्शन ड्यू टू द एक्चुअल वेलोसिटी। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय अल्फा, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो हमने लिया है वेलोसिटी का, तो यहाँ पे देखोगे कि पूरा सेक्शन 1 पे क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा था, क्या एक ही वेलोसिटी है ना, एक ही वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा रियल फ्लूइड में तो ये पैराबोलिक आ रहा है। सो हमने क्या बोला यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, तो क्या कर दिया हमने अल्फा जो है काइनेटिक एनर्जी पर करेक्शन फैक्टर, दैट इज 1/2 इंटू रो इंटू ए इंटू वी एवरेज होल क्यूब, दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। इफ आई राइट यहां से अगर हम लोग लिखे कि क्या होना चाहिए, तो हमारा क्या होना चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्रॉसिंग एट ए सेक्शन ड्यू टू एक्चुअल वेलोसिटी। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम अल्फा से अगर मल्टीप्लाई कर दे, तो अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्रॉसिंग at the same section due to average velocity। तो यहाँ अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा को हम लोग लिख क्या सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्रॉसिंग एट ए सेक्शन
ड्यू टू एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड क्रॉसिंग at the same section due to एवरेज वेलोसिटी। सो ये अल्फा का डिफिनीशन भी है, अगर अल्फा का डिफिनीशन पूछा जाएगा तो यही बोलेंगे, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ अल्फा। सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन क्या होगा, तो अल्फा हमने बोला है कि इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू, so if I write अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी क्रॉसिंग एट द सेम सेक्शन ड्यू टू एवरेज वेलोसिटी कितना था 1/2 इंटू रो इंटू ए इंटू एवरेज वेलोसिटी का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो, और ये वाला कितना आया है ड्यू टू द एक्चुअल वेलोसिटी 1/2 रो इंटीग्रल ऑफ ए इंटू वी क्यू इंटू डी ए। यहाँ से देखो 1/2 रो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया अल्फा का जो एक्सप्रेशन मैथमेटिकली जो है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू वी क्यू इंटू डी ए डिवाइडेड बाई ए इंटू वी एवरेज क्यू। बताओ इसमें किसी को डाउट है, तो इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इसी तरह हम लोग निकालेंगे, किसी तरह का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। क्या है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन हमने क्या बोला कि एक्सप्रेशन जो है हमारा इंटीग्रल ऑफ वी क्यू इंटू डी ए डिवाइडेड बाई ए इंटू वी एवरेज क्यू। तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने जो लिखा है अल्फा की वैल्यू क्या लिखा है हमने, अल्फा इज इक्वल टू वी क्यू इंटू डी ए डिवाइडेड बाई ए इंटू वी एवरेज होल क्यू। अगर हम लोग पाइप फ्लो की बात करें, अगर पाइप फ्लो में होगा फॉर पाइप फ्लो और उसमें फ्लो जो हमारा लैमिनार होगा, तो लैमिनार फ्लो के लिए जो अल्फा की वैल्यू जो होती है, सबसे पहले पाइप फ्लो में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो हम लोग देखेंगे वहां पे आगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। अभी अगर मैं लिख दूं वी यू इज इक्वल टू, तो ये होता है 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। मान लो कि दिस इज आवर पाइप, अगर हमारा ये पाइप है, सर्कुलर पाइप है अगर इस तरह, तो ये क्या है, अगर इसका वेलोसिटी को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो व्हेन आर इज इक्वल टू 0, जब आर की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा मैक्सिमम, कुछ इस तरह का वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। बस ये मैंने अभी ये डिराइव करूंगा मैं, जब हम लोग लैमिनार फ्लो पढ़ेंगे तो वहां पे डिराइव करेंगे हम कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। बस हमने अभी जस्ट लिख दिया कि जो मैं बोल रहा हूँ कि जो पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। तो यहाँ पे अगर लैमिनार फ्लो होगा अगर तो पाइप फ्लो में, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होगा वो पैराबोलिक होगा, दिस इज द पैराबोलिक। अगर टर्बुलेंट फ्लो होता है तो लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जनरली जो होगा लैमिनार फ्लो के लिए वो होगा 2 होता है, और अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, ठीक है, लैमिनार फ्लो के लिए। तो यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकाल लिया है। बताओ इसके डेरिवेशन में किसी को डाउट है, अभी भी डेरिवेशन में किसी को डाउट है? चलो कोई डाउट नहीं है। अब उसी तरह एक और टर्म होता है जिसको बोला जाता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, उसको भी यहीं पे हम लोग जान लेते हैं क्या होता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जिसको बीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, तो सेम चीज है, यहाँ पे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर है, तो एक्चुअल वेलोसिटी के कारण कितना मोमेंटम हो रहा है किसी सेक्शन पे डिवाइडेड बाय एवरेज वेलोसिटी की वजह से कितना मोमेंटम हो रहा है, उसी को हम लोग जानते हैं। तो अगर हम लोग मोमेंटम यहाँ पे लिखे, मोमेंटम को अगर लिखें कि मोमेंटम एट ए सेक्शन ड्यू टू एक्चुअल वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम को क्या लिखते हैं m इंटू वी, और यहाँ से m को फिर से हमने लिखा रो, किसी पार्टिकुलर सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो हमने v को क्या लिख दिया, बोलो सबसे पहले तो रो इंटू डी ए इंटू वी इंटू स्मॉल वी, तो क्या हो जाएगा रो इंटू डी ए इंटू वी स्क्वायर। तो टोटल मोमेंटम जो हो जाएगा, टोटल मोमेंटम एट अ सेक्शन
ड्यू टू एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट किया तो एरिया से, और यहाँ पे रो इंटू डी ए इंटू वी स्क्वायर, फिर रो कांस्टेंट है तो रो को हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रल ऑफ वी स्क्वायर इंटू डी ए। सिमिलरली द एवरेज वेलोसिटी, फिर से हम लोग जो अगर एवरेज वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, टोटल मोमेंटम, तो जो हो जाएगा मोमेंटम पर सेकेंड तो होगा ही पर सेकेंड at the same section due to average velocity, तो एवरेज वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा तो m इंटू एवरेज वेलोसिटी, और m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m को फिर से लिख सकते हैं रो इंटू वी ए इंटू वी एवरेज इंटू वी एवरेज। तो क्या हो गया हमारा यहाँ से रो इंटू ए इंटू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। फिर से अब हम लोग अगर मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनीशन यही होगा, मोमेंटम पर सेकेंड ड्यू टू एक्चुअल वेलोसिटी at a given section divided by momentum per second due to average velocity at the same section। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो यहाँ से अगर मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के एक्सप्रेशन को निकाला जाए तो फिर से वही कर दो आप, क्या है हमारा मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, मोमेंटम जो है ड्यू टू द एक्चुअल वेलोसिटी, सो एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, दैट इज इक्वल टू रो इंटू इंटीग्रल ऑफ ए वी स्क्वायर डी ए डिवाइडेड बाई रो इंटू ए इंटू वी एवरेज स्क्वायर। तो यहाँ से रो कैंसिल हो गया, सो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का जो एक्सप्रेशन आ गया a इंटू वी स्क्वायर इंटू डी ए डिवाइडेड बाई a इंटू वी एवरेज का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग मोमेंटम करेक्शन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर निकाला है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर है, तब तो आपको जो वेलोसिटी हेड में जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा, वेलोसिटी हेड में आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर से। यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम करेक्शन फैक्टर मैंने जस्ट बता दिया है कि हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो सिर्फ उसको हमने बताया है कि हमें जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वहां पे हमें नहीं फिर इसको कवर करना है, यहीं पे हमने कवर कर लिया है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को, ठीक है। तो यहाँ से जो होगा ये है आपका मोमेंटम पर सेकेंड ड्यू टू average velocity at the same section, और फिर इसके एक्सप्रेशन को हमने लिखा है क्या, सो बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रो इंटू वी स्क्वायर इंटू डी ए डिवाइडेड बाई रो इंटू ए इंटू वी एवरेज स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा बीटा की वैल्यू जो हो जाएगा वो इंटीग्रल ए वी स्क्वायर इंटू डी ए डिवाइडेड बाई ए इंटू वी एवरेज स्क्वायर। तो यहाँ से मोमेंटम करेक्शन फैक्टर ये हमारा हो गया है। तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्यों लगाते हैं, सबको समझ में आया क्यों लगाते हैं, बर्नौली इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्यों लगाते हैं, सबको समझ में आ रहा है? yes, हाँ, अल्फा की वैल्यू क्यों लगाते हैं, वेलोसिटी हेड में हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, ड्यू टू द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज नॉट यूनिफॉर्म इन द रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड में तो यूनिफॉर्म था वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, बट इन द रियल फ्लूइड द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। सो जो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आएगा ड्यू टू द एवरेज वेलोसिटी, उसको हमने फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जिसको बोला गया है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। अगर उस फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड एट ए सेक्शन ड्यू टू द एक्चुअल वेलोसिटी, जो हो जाएगा वो हो जाएगा। और उससे एक एक्सप्रेशन आया है जिसको हमने बोला है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए वी क्यू डी ए डिवाइडेड बाई ए इंटू वी एवरेज क्यू। और उसी तरह हमने मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को फिर से हमने डिराइव किया है, तो दोनों के इक्वेशन को हमने डिराइव किया है और बोला है कि फॉर लैमिनार फ्लो जो होगा, अगर हमारा लैमिनार फ्लो है तो अल्फा की वैल्यू जो वो होगी 2 होगी, और लैमिनार फ्लो के लिए बीटा की वैल्यू जो होगी वो 4/3 होगी, मतलब 1.33 होगी, ठीक है। और अगर आइडियल फ्लो प्रोफाइल होगा तो अल्फा की वैल्यू जो हमारा होगा
कोई किसी तरह का पाइप हो उसके लिए वैल्यू जो होगा, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं वो 1 होगा। तो फॉर लैमिनार फ्लो इन पाइप अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। फॉर लैमिनार फ्लो के लिए ही जो होगा हमारा बीटा का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, फॉर लैमिनार फ्लो बीटा की वैल्यू जनरली होती है वो 4/3 1.33। और ये दोनों जो है वो आइडियल फ्लूइड के लिए है, सॉरी रियल फ्लूइड के लिए। रियल फ्लूइड अगर आइडियल फ्लूइड होगा फॉर आइडियल फ्लूइड तो अल्फा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगा। बिकॉज वेलोसिटी हमारा जो है पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो अल्फा की वैल्यू 1 है, इसीलिए वहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर हम लोगों ने लगाएंगे भी तब भी वो यूनिटी हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। मान लो कि यहाँ पे अब बना आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ, सो द एनर्जी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, so that the energy equation after taking the effect of अल्फा क्या हो जाएगा। तो एनर्जी इक्वेशन अगर हमें लिखना है दो सेक्शन पे, दिस इज 1 और दिस इज 2 तो क्या हो जाएगा बताइए, P1 बाई गामा। अगर बर्नौलीज इक्वेशन पर यूनिट वेट लिखना है तो क्या हो जाएगा, P1 बाई गामा प्लस अल्फा इंटू V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई गामा प्लस अल्फा इंटू V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस सम हेड लॉस। सर यहाँ पे V1 जो है वो एवरेज वेलोसिटी होगा जी, V1 यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होगा, V1 V2। हाँ अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया है ना। हाँ यस जी, और कोई डाउट? चलिए अब क्वेश्चन करिए। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है सिविल सर्विसेज एग्जाम 2005, बोला जा रहा है कि इन द केस ऑफ लैमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन। जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह का है, v by v max is equal to 1 minus small r square divided by r square, where v max is the maximum velocity at the axis of the pipe। हमने अभी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया था, अभी हमने वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताया था, 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, वही चीज है यहाँ से। तो उसके एक्सप्रेशन को अगर v का वैल्यू है और मैक्सिमम वेलोसिटी निकालोगे तो कुछ इस तरह का आएगा, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और कुछ इस तरह का आएगा। हमने जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि लैमिनार फ्लो अगर सर्कुलर पाइप है जिसका रेडियस जो r है, तो उसे हमने बताया है ना यहाँ पे देखिए 1/4 p माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, जब r की वैल्यू 0 हो जाए तो कितना हो गया u max 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। बोलो यस सर। अब u बाई यू मैक्स करोगे तो वही एक्सप्रेशन जो आएगा जो दिया हुआ है आपका, तो वही मैक्सिमम एक्सप्रेशन जो है आपका दिया हुआ है। जो v मैक्स है हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है और r जो है वो रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप एक्सिस, और जो r कैपिटल R जो है वो रेडियस ऑफ द पाइप है। तो बोल रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर एंड मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द लैमिनार फ्लो इन द सर्कुलर पाइप। आपको काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर निकालना है, जल्दी से निकालिए। हमारा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो अगर देखा जाए तो v बाई v मैक्स इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर सबसे पहले हमको निकालना है। तो मान लो कि अगर ये हमारा पाइप है कुछ इस तरह का होगा, तो ये r है, स्मॉल r ये है और ये y है मानो। तो इसको अगर आप बनाओगे इस तरह, ये सेंटर है, मान लो कि दिस इज स्मॉल r और जो मैक्सिमम जो रेडियस है वो r है। तो इसका एरिया अगर हम लोग लिखना चाहे एलिमेंट्री, अगर हम लोग ले एलिमेंट्री एक, तो एलिमेंट्री अगर हम लोग ले ले तो एरिया क्या हो जाएगा, dr करके जो लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr। बोलो एलिमेंट्री अगर हम लोग एक सर्कल लें तो क्या हो जाएगा एरिया हमारा उसका 2 पाई r इंटू dr। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा आपको, बिकॉज अल्फा की वैल्यू क्या है, इंटीग्रल ऑफ a
वी क्यू इंटू डी ए डिवाइडेड बाई ए इंटू वी एवरेज क्यू। तो सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी जो निकालेंगे वो कैसे, v इंटू एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, q बाई ए, q बाई ए होगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, v इंटू डी ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए, और पूरा का पूरा एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और v का एक्सप्रेशन, तो v का एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, करो क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले निकाल लीजिए। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगा, v मैक्स इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कितना है हमारा, डी ए जो हमारा है कितना है, यहाँ पे जो डी ए है वो क्या है, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहाँ से 2 पाई आर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई, स्मॉल डी ए लिखोगे तो स्मॉल डी ए को अगर 0 से आर रन कराओगे तो वही चीज आएगा, कैपिटल ए ही की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल ए। तो यहाँ से आप क्या क्या कांस्टेंट है, वी मैक्स कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, दोनों को बाहर निकाल दीजिए। तो 2 पाई इंटू वी मैक्स क्या बच गया, इंटीग्रल ऑफ 0 टू आर, यहाँ जो होगा वो 0 टू आर 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर इंटू डी आर, और एरिया को भी हमने बाहर निकाल दिया बिकॉज एरिया जो है हमारा पाई आर स्क्वायर, तो उसको भी हमने बाहर निकाल दिया। तो क्या बच गया, 2 पाई इंटू वी मैक्स डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से देखो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर डी आर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा आपका आर 4 बाई 4 आर, आर स्क्वायर 0 टू आर। देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पाई इंटू वी मैक्स डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे रखोगे तो आर 4 डिवाइडेड बाई 4 आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से कितना वैल्यू आया बताइए, 2 पाई इंटू 2 वी मैक्स इंटू पाई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू ये वाला जो आपका हो गया वो कितना हो गया 4, तो 2 आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाई 4। देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, एवरेज वेलोसिटी जो आ गया वो कितना है, 2 मैक्स बाय 4, यानी एवरेज वेलोसिटी जो हो गया वो v मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। यस बोलो यस सर। यस सर। अब यहाँ से अल्फा निकाल दीजिए। तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा का जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है, अल्फा का एक्सप्रेशन क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से जो हमने क्या किया था कि वी एवरेज जो हमने निकाला वी मैक्स बाई 2, अल्फा जो है वो क्या है, वी क्यू डी ए डिवाइडेड बाई ए इंटू वी एवरेज क्यू। तो वी की वैल्यू को हमने रख दिया क्या, वी मैक्स क्यू इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का क्यू इंटू 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई ए इंटू वी एवरेज क्यू। अब यहाँ से हमने क्या मान लिया, 1 बाई आर स्क्वायर को हमने क्या माना है, क्यू माना है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर को जेड माना है, तो वहां से क्या आ गया, माइनस 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड। पुट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया, जेड क्यू, और आर डी आर के जगह पे क्या रखेंगे हम, माइनस आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, जेड क्यू इंटू माइनस आर स्क्वायर बाई 2। अब हमारा जो वैल्यू जो है अल्फा का, तो अल्फा जो है वो कितना हो गया, 2 पाई इंटू वी मैक्स क्यू डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया जो है हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू वी एवरेज का क्यू, सो वी एवरेज क्यू कितना हो जाएगा, वी मैक्स क्यू इंटू 8 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 पहले से था जो हमने बाहर निकाल लिया है, तो क्या बच गया, माइनस जेड क्यू इंटू डी जेड, माइनस जेड क्यू इंटू डी जेड रनिंग फ्रॉम 1 टू जेड। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, वी मैक्स से वी मैक्स कैंसिल, तो कितना बच गया, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 8 इंटू आपका हो गया, अगर माइनस को अगर चेंज करेंगे तो फिर 0 टू 1 जेड क्यू इंटू डी जेड, सो ये वाला वैल्यू हो गया 8 इंटू जेड 4 बाई 4 0 टू 1, so it will be 8 by 8 into 1 by 4, so the value of alpha is equal to 2. Similarly, the momentum correction factor can be computed. So momentum correction factor beta, so beta का एक्सप्रेशन क्या था, beta is equal to v square into dA divided by a into v average स्क्वायर। अब यहाँ पे आप रख दो फिर से, सो क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू वी स्क्वायर, वी के जगह पे कितना है, वी मैक्स इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर
डिवाइडेड बाई ए इंटू वी एवरेज स्क्वायर, सो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू वी एवरेज जो है वो कितना है, वी मैक्स स्क्वायर इंटू 4। तो यहाँ से वी मैक्स स्क्वायर और यहाँ पे ऑफ कोर्स दिस इज द इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक, 0 टू r। तो देखो वी मैक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 4 बाई पाई आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 0 टू r हो गया 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 2 पाई भी हमने बाहर निकाल लिया है, तो दिस वैल्यू विल बी 8 पाई इंटू आर इंटू डी आर। फिर से आप या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ो या इसको फिर से कांस्टेंट कुछ एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लीजिए फिर से। सो लेट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हमने क्या एज्यूम कर लिया, टी एज्यूम कर लिया, तो क्या हो जाएगा माइनस 2r इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से कितना हो गया, आर डी आर के अगर वैल्यू को रखा जाए आर इंटू डी आर, सो दैट इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। पुट द वैल्यू ऑफ what we have replaced, that is 1 minus r square by r square that is equal to t, and of course the range of the integration will be changed. So when small r is equal to 0, so t is equal to 1, and then when r tends to capital R, then the value of t should be 0. So it can be written as beta is equal to 8 pi divided by 8 pi divided by pi r square integration of 1 to 0, and this value is t स्क्वायर, जो इसके वैल्यू को हमने t में एज्यूम किया तो t स्क्वायर, और r dr के जगह पे हमने रख दिया माइनस आर स्क्वायर बाई 2, तो माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी टी। तो यहाँ से क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर, इट विल बी माइनस 1 to 0 टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर पाई स्क्वायर कैंसिल, सो 4 इंटू 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 इंटू टी क्यू बाई 3 रनिंग फ्रॉम 0 to 1, सो दिस वैल्यू इज 4 इंटू 1 बाई 3। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 4/3। इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो, मैंने बोला भी था कि लैमिनार फ्लो अगर सर्कुलर पाइप हो और लैमिनार फ्लो हो तो अल्फा की वैल्यू जनरली आती है, जनरली जो होगी वो 2 होगी, और बीटा की वैल्यू जो होगी मतलब कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू जो होगी वो 1.33 होगी। तो यहाँ से आपका आया है। बताइए इसमें किसी को डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन, किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। इसमें किसी को डाउट है तो ये एक क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा और वहां पे मोमेंटम करेक्शन फैक्टर या काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को, या हो सकता है कि आपको वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ही दे दे और फिर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना होगा, तो वहां पे आपको अल्फा की वैल्यू निकालना होगा, तब जाके वहां पे हम लगाएंगे किसी 2 सेक्शन पे P1 by gamma plus alpha 1 V1 square by 2G plus Z1 that is equal to P2 by gamma plus alpha into V2 square by 2G plus Z2 plus head loss between 1 and 2 that is HL head loss। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन करिए। अब बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ लैमिनार फ्लो बिटवीन 2 फिक्स्ड पैरेलल प्लेट्स V डिस्टेंस अपार्ट is given by equation V is equal to K into By minus Y square, find the kinetic energy correction factor and momentum correction factor। जल्दी से निकालो। आपका 2 पैरेलल फिक्स प्लेट है, मान लो कि वन फिक्स प्लेट, दिस इज द फिक्स प्लेट, और दूसरा जो फिक्स प्लेट ये है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, b है, और वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है v इज इक्वल टू क्या है, k इंटू By माइनस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लें, एवरेज वेलोसिटी निकाल लें। तो अगर हम लोग स्मॉल थिकनेस एक लिए, स्मॉल स्ट्रिप ले, तो उसका dA जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dA जो हो जाएगा वो क्या, dy इंटू 1, बोलो dy इंटू 1 ही होगा ना। तो यहाँ से आप एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v इंटू dA डिवाइडेड बाई कैपिटल A, और यहाँ पे dA हम लिख देंगे क्योंकि ये भी वेरी कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू जो है वो क्या है, k इंटू By माइनस वाई स्क्वायर। तो 0 टू b k इंटू By माइनस वाई स्क्वायर इंटू dA के जगह पे क्या रख देंगे, dy इंटू 1, सो dy डिवाइडेड बाई ये वाला भी वैल्यू dy रनिंग फ्रॉम 0 टू b।
तो ये कितना हो गया dy इंटू 1। अब इंटीग्रेट करो और एवरेज वेलोसिटी बताओ कितना आ रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया, k को अगर हमने बाहर कर दिया तो k ये वाला वैल्यू जो हो गया वो b इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 आपका जो है माइनस वाई क्यू बाई 3 0 टू b डिवाइडेड बाई ये हो गया y, तो मतलब कि ये v हो गया। बताओ ये कितना आ रहा है वैल्यू, k इंटू b की वैल्यू रखिए तो बी क्यू बाई 2 माइनस बी क्यू बाई 3 डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ से क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी, बोलो k बाई b, यहाँ पे हो गया आपका 6, सो 3 माइनस 2, सो बी क्यू बाई 6 की बी स्क्वायर बाई 6। हाँ, k इंटू बी स्क्वायर बाई 6 एवरेज वेलोसिटी। अगर सब चीज सही है ना, देख लीजिए ना। ये सर इतना ही आ रहा। हाँ चलो, अब काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर निकालिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया है, इंटीग्रल ऑफ वी क्यू इंटू डी ए डिवाइडेड बाई ए इंटू वी एवरेज क्यू। तो यहाँ से कितना हो गया आपका, हो गया आपका वी क्यू की वैल्यू को रख दो फिर से, तो 0 टू बी कितना है हमारा b की वैल्यू, तो दैट इज इक्वल टू के क्यू इंटू बी वाई माइनस वाई क्यू। अगर यहाँ पे आप बी क्यू करोगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू बी वाई माइनस वाई क्यू इंटू डी ए की जगह पे हमने रख दिया डी वाई डिवाइडेड बाई एरिया को अगर डी ए भी लिख सकते हो तो वो बी ही आएगा, तो बी एवरेज क्यू। अब यहाँ से देखो के क्यू को बाहर निकाल लो, डिवाइडेड बाई बी इंटू बी एवरेज क्यू, और यहाँ से आप करो, यहाँ पे क्यू होगा, फिर से देख नहीं रहे हो अच्छे से, बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी वाई माइनस वाई स्क्वायर है ना, बी वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका हाँ वाई स्क्वायर होगा, वो बी वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब आप इसको तोड़ दीजिए ए माइनस बी का होल क्यू पे, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यू, सो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, सो ए क्यू क्या हो जाएगा बी क्यू इंटू वाई क्यू माइनस बी क्यू, सो बी क्यू कितना हो जाएगा वाई 6 माइनस 3ab, सो माइनस 3ab कितना हो जाएगा 3b इंटू वाई क्यू, 3b इंटू वाई क्यू इंटू ए माइनस बी, सो क्या हो गया बी वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई 0 टू b। अब ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई बी इंटू बी एवरेज क्यू। अब इंटीग्रेट करिए, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इंटीग्रेट करो क्या आ रहा है देखो, तो ये हो गया बी क्यू इंटू वाई 4/4 माइनस वाई 7/7 माइनस हो जाएगा 3b स्क्वायर, और ये y4 था तो y4 का क्या हो जाएगा y5/5 प्लस हो जाएगा 3b इंटू y5 है, 3b इंटू y5 है तो क्या हो जाएगा y6/6 रनिंग फ्रॉम 0 टू b। अब निकालो देखो क्या आ रहा है, b की वैल्यू को रखो, सब पे b के वैल्यू को रखिए तो क्या आ रहा है देखिए, के क्यू इंटू बी इंटू एवरेज वेलोसिटी हमने कितना निकाला है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारा के बी स्क्वायर बाई 6 है, तो यहाँ पे रख दो के बी स्क्वायर और यहाँ पे 6 आ गया, और यहाँ पे अगर b रखोगे तो कितना हो जाएगा b7/4 माइनस b7 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3/5 b7 और प्लस 3/6 है, तो 3/6 है तो क्या लिख देंगे 1/2 b7। इसके वैल्यू को बताओ कितना आ रहा है 1/4 माइनस 1/7 7 कॉमन लेके 1/4 माइनस 1/7 माइनस 3/5 प्लस 1/2, ये वाला वैल्यू आ रहा है 1/140 b7। यहां से रखो वैल्यू, तो b7 देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे बी एवरेज जो था वो कितना था, बी एवरेज जो था वो के बी स्क्वायर बाई 6 है, तो डायरेक्ट के बी स्क्वायर थोड़ी होगा, के बी स्क्वायर का क्यू होगा ना, यहाँ पे के बी स्क्वायर का क्यू और यहाँ पे 6 का क्यू, तो यहाँ से कितना हो गया 6 क्यू मतलब 216
के क्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे के क्यू इंटू B6। अरे यहाँ पे पहले से B है और यहाँ पे B6 हो गया तो B7 हो गया ना, के B7 के क्यू इंटू B7 और यहाँ से वैल्यू जो आया है वो कितना आया है B7 डिवाइडेड बाई 140। के क्यू से कैंसिल, B7 से B7 कैंसिल, तो कितना हो गया 216 डिवाइडेड बाई 140। तो ये वाला वैल्यू आ गया है वो 1.543। तो अल्फा की वैल्यू जो आ गई है वो 1.543। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर ने 2 बोला है तो वो सर्कुलर पाइप के लिए था, ये पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है। Yes, जो sir. जो आ रहा था लैमिनार फ्लो में अल्फा की वैल्यू जो 2 आ रही थी वो सर्कुलर पाइप्स था, ये पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है, बीटा की वैल्यू निकाल लो, जल्दी से निकाल के बताइए बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। सो बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वी स्क्वायर इंटू डी ए डिवाइडेड बाई ए इंटू वी एवरेज स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी स्क्वायर के जगह पे क्या लगेंगे के स्क्वायर इंटू बी वाई माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी ए के जगह पे हमने रख दिया डी वाई 0 टू बी, और यहाँ से एरिया जो है वो ए बी इंटू बी एवरेज स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर फिर से बाहर निकाल लो, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू बी एवरेज स्क्वायर। अब बच गया आपका ये, इसको तोड़ दो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या हो गया 0 टू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 बोलो माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2b इंटू वाई क्यूब डी वाई। अब इसको करिए तो के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी, हाँ तो के स्क्वायर उस पेज में डिवाइडेड बाई बी इंटू बी एवरेज स्क्वायर, इंटीग्रेट करो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू वाई क्यू बाई 3, बी स्क्वायर इंटू वाई क्यू बाई 3 प्लस यहाँ से हो जाएगा y5 बाई 5 माइनस हो जाएगा 2b इंटू वाई 4 बाई 4 माइनस 2b इंटू वाई 4 बाई 4 रनिंग फ्रॉम 0 टू b। तो यहाँ से हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू बी एवरेज स्क्वायर, ये वाला वैल्यू रख दो b, तो क्या हो जाएगा सर स्लाइड 22 स्लाइड पे एक बार फिर से आइएगा सर, एक फुट छूट गया। b5 बाई 3 प्लस b5 बाई 5 माइनस 2 बाई 4 है तो 1 बाई 2, तो b5 बाई 2, और यहाँ से b5 रखो। एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना था, तो एवरेज वेलोसिटी इज के बी स्क्वायर बाई 6, तो एवरेज वेलोसिटी इज के बी स्क्वायर बाई 6, तो के स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू एवरेज वेलोसिटी कितना है के बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर इंटू बी4 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर इंटू ये वाला वैल्यू बताओ कितना आ रहा है 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5, 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 30 इंटू b5। देखो b5 कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ गया 36 बाई 30, कितना आ रहा है वैल्यू 6 by 5 divided by 1.2. 30, so the value is 1.2, so the momentum correction factor is 1.2 and kinetic energy correction factor is कितना आया kinetic energy is 1.54। यहाँ तक किसी को डाउट, इसमें किसी को डाउट है तो in the next class I will discuss the different measuring device, how to measure the discharge or velocity like वेंचुरोमीटर और इफिसमीटर, पिटॉट ट्यूब, ये सारा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग एक्चुअल थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और एक्चुअल डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।